Assalamu alaikum students, this is Nazim Rashid and you are watching this video on your channel Easy Physics by Nazim. Today we are going to discuss some of the MCQs which are being asked in different anti-test examinations and board exams, and the MCQs are related to the topic electric flux. There are some key points which we should discuss in this topic, and these key points would help you in solving the MCQs related to the topic electric flux. Now, before going into the detail of the MCQs, we must keep in mind the basic formula of Gauss's law, and that basic formula would help us to solve the MCQs related to the topic. Now, इसकी अगर हम स्टेटमेंट देखें, गॉसेस लॉ की स्टेटमेंट देखें, तो मैथमेटिकली अगर आप यहाँ पे देखो तो लिखा हुआ है फाई, विच मीन्स हम सबको जैसे पता है इट इज़ इलेक्ट्रिक फ्लक्स. Electric flux is defined as, in Gauss's law, it is defined as the flux through any closed surface. The flux through any closed surface is equal to 1 by epsilon naught times the charge enclosed. And what do you mean by the word enclosed? Enclosed means whenever any matter, or whenever, in this case if we say whenever any charge is within the surface, then we use the word of enclosed. That word enclosed is very important in explaining or in discussing the MCQs related to the topic electric flux. If I repeat the statement of Gauss's law, it says the flux through any closed surface is 1 by epsilon naught times the charge enclosed within the surface. Now, if we keep this point in our mind, the word of enclosed, then we would be able to solve all the MCQs related to the topic electric flux. Now, if we discuss some of the examples of this word, here we have a charge, plus charge. Okay, this plus charge would be named as a positive point charge, or it would be said as a positive source charge, and it is capital Q. We have a surface which is in the shape of a sphere in this case. As we know that the electric field lines for the case of a positive charge are in the outward direction. I have drawn some of the electric field lines just for explaining the concept. We see that these lines are passing through the surface as they move in the outward direction. These lines move in the outward direction, they pass through the surface of the sphere. Now, those lines which are passing through the surface of the sphere becomes the flux of the surface. Now, if we find out, or if we write the relation for the flux of this surface, which is a sphere, it would be, according to the definition of Gauss's law, it would be flux is equal to 1 by epsilon naught times the charge enclosed. As in this case, the charge is within the surface, so it would be, and the complete charge is within the surface, so the relation would be Q by epsilon naught. Okay, now we move towards the next example. If we have the same charge, Q charge, but in this case the charge is outside the surface, we have the same sphere, and we have this charge, this source charge, which is outside the surface. The field lines for the positive charge are in the outward direction, as you can see, and these lines are passing, or they are moving towards the surface. Now, if we want to find the flux of this surface of this sphere in this case, then what would be the answer of this? The answer would be 0. It should be 0. Now, what is the reason of getting 0 flux in this case? We see a single line is entering in this case into the surface of the sphere, and that single line at the other end, it is moving in the outward direction. It is ejecting from the surface. So by convention, as we know that the lines which are moving in the outward direction from any surface, those lines are taken as positive lines, and the lines which are entering any surface, they are taken as negative lines. So a single line is entering the surface, it is taken as -1, and a single line is ejecting or moving outward from that surface, it would be taken as +1. So if we get
the net value of the flux, that would be +1, and -1 we get the total value to be 0. सेम नंबर ऑफ लाइंस एंटर भी कर रही हैं और सेम नंबर ऑफ लाइंस इजेक्ट भी कर रही हैं. इन दैट केस जो इजेक्ट कर रही हैं दैट वुड बी टेकन एज पॉजिटिव जितनी भी होंगी, और जितनी एंटर कर रही हैं उतनी वो नेगेटिव में होंगी. तो उनका जो नेट फ्लक्स आ जाएगा वो 0 आ जाएगा. ठीक है, तो इस केस में नेट फ्लक्स 0 है. एंड द मेन पॉइंट यहाँ पे, ये तो चलो मैंने नंबर ऑफ़ लाइंस को देख लिया, और आपको कंफ्यूज करने के लिए अगर आप कोई टीचर पूछे या कोई भी एग्जामिनर पूछे कि यहाँ पे तो आपको इस सरफेस में से लाइन पास होती हुई नज़र आ रही है, तो यहाँ पे तो फ्लक्स होना चाहिए. तो आपने पहला पॉइंट, की पॉइंट जो आपके माइंड में रहना चाहिए वो तो ये है कि ये जो चार्ज है वो तो इस सरफेस के अंदर है ही नहीं. तो गॉसेस लॉ तो उस फ्लक्स के बारे में बताता है, और हमें बताता है कि फ्लक्स तो only in that case हमें मिलता है when the charge is within the surface, but in this case charge is not within the surface. तो इसका तो फ्लक्स होने नहीं चाहिए. स्ट्रेट हमें आंसर देना चाहिए उस गॉसेस लॉ के स्टेटमेंट के लिहाज से. ठीक है, लेकिन इफ़ इन केस वो अगर हमें कंफ्यूज करने के लिए कह रहा है कि ये तो लाइन हमें नज़र आ रही है, तो फिर आप उसी की टर्म्स में अगर आप उसको रिप्लाई करना चाहो तो आप ऐसे कह सकते हो कि लाइन एंटर कर रही हैं तो वो तो नेगेटिव लेंगे, कन्वेंशन है, और उतनी लाइंस वहाँ से मर्ज भी कर रही हैं, आउटवर्ड जब भी जा रही हैं उनको पॉजिटिव लेंगे, तो नेट उनका 0 ही आएगा. ठीक है, अब हम नेक्स्ट इसकी एक और एग्जांपल लेते हैं, और आई थिंक सो कि इस पॉइंट को आप फर्दर आगे एक्सप्लेन कर पाएंगे आसानी से. ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखें, अच्छा, नाउ वी हैव द सेम सोर्स चार्ज Q. दिस इज कैपिटल Q, पॉजिटिव इन द केस, एंड फॉर द गिवन केस नाउ the shape is of a box, a cube. It is a cube, not a sphere. Now the number of lines which are emerging, which are moving in the outward direction from a positive charge are, for example, the number of lines are 10. ठीक है, for example, if we talk about flux in terms of number of lines, then in this case, for example, the number of lines are 10. ठीक है, तो अगर आप इसका फ्लक्स बताना चाहोगे तो आप क्या बता दोगे? फ्लक्स वुड बी, इन दिस केस वुड बी 10, क्योंकि लाइंस के लिहाज से आप बता रहे हो, वैसे तो आप चार्ज के लिहाज से बताते हो, लेकिन इस केस में क्योंकि आप उसको फ्लक्स को नंबर ऑफ़ लाइंस के लिहाज से डिस्कस करें तो फ्लक्स वुड बी 10, ये आपके पास 10 आ जाएगा. ठीक है, तो ये है. अगर आपके पास यही चार्ज इस सरफेस से बाहर होता, इन दैट केस क्योंकि वो अंदर नहीं है तो उस केस में आपके पास फ्लक्स क्या आ जाना था? 0, क्योंकि कोई सी भी लाइन उसमें से अगर आप कहते हैं यहाँ से पॉजिटिव चार्ज है या आउटवर्ड लाइन जा रही हैं, इस फेस में से पास कर रही हैं, तो फेस में से जो एंटर कर रही होंगे वो दूसरे फेस में से, इसके ऑपोजिट वाले फेस में से बाहर भी नहीं कर रही होंगी, तो उसका जो टोटल फ्लक्स आ जाएगा वो 0 ही आ जाएगा. ठीक है, लेकिन चलो हम जनरल बात करते हैं, नंबर ऑफ़ लाइंस के लिहाज से नहीं बात करते. यहाँ पे अगर आप देखो तो ये 1/6 मैंने क्या लिखा, आपसे क्वेश्चन ये कोई करता है कि वी हैव अ क्यूब एंड फाइंड द फ्लक्स थ्रू एनी वन ऑफ द फेस, किसी एक फेस में से आपने इसका फ्लक्स निकालना है. तो फिर आप कैसे फ्लक्स इसका निकालोगे? आपसे वो फेस के लिहाज से क्वेश्चन कर रहा है ना, तो आपने देखना है कि हमारी जो गिवन शेप है उसके टोटल फेसेस कितने हैं. एक ये वाला फेस हो जाएगा, इसके एग्जैक्ट ऑपोजिट यहाँ पे 2 फेस, एक बैक साइड पे हो जाएगा, और इसके ये यहाँ पे हमारे फ्रंट पे 4th, एक टॉप पे हो जाएगा 5th, एंड एक बॉटम पे हो जाएगा 6th. तो 6 फेसेस हैं. और अगर आपसे कोई एक फेस का पूछता है तो वी गेट द फ्लक्स थ्रू दैट सिंगल फेस वुड बी 1/6 के टोटल में से जस्ट 6 हमने टोटल जितनों में वो फिगर आपके पास डिवाइडेड है वो यहाँ पे नीचे लिखें, उसमें से कितने फेसेस के बारे में वो आपसे पूछ रहा है, जस्ट 1 फेस का पूछा है, तो यहाँ पे न्यूमरेटर में लिखें दैट टोटल चार्ज इज़ विद इन द सरफेस ओवर एप्सिलॉन नॉट. ये आपका गॉसेस लॉ की जो फॉर्मूला की फॉर्म है वो एज इट इज़ रहेगी, और ये टोटल फेसेस नीचे लिखने हैं, और जितने फेस से के बारे में आपसे पूछ रहे हैं वो फेस आप ऊपर नंबर में लिखेंगे. तो इस केस में एक फेस में से इतना फ्लक्स पास करेगा, दिस वुड बी द राइट ऑप्शन. अगर MCQ आता है तो दिस वुड बी द राइट ऑप्शन. ठीक है, ये एनी वन फेस का अगर पूछता है तो 1/6 ऑफ, क्योंकि टोटल 6 हैं उसमें से एक का पूछा है. अगर आपसे वो पूछ लेता है कि टोटल फ्लक्स क्या हो जाएगा इस केस में, अगर वो कहता है सारे 6 के 6 फेसेस का पूछ लें, तो ये मैंने कहा है कि ये जो गॉसेस लॉ का क्यूब एप्सिलॉन नॉट ये तो आना ही आना है. नीचे आपने लिखना होता है क्यूब एप्सिलॉन नॉट, ये तो आना ही आना है. नीचे आपने टोटल फेसेस उसके लिखने हैं, और अब आपसे पूछ कितने का रहा है वो ऊपर लिखना है. तो 6 फेसेस का पूछ रहा है, सारे फेसेस का पूछ रहा है, 6 लिख दोगे, 6/6 दैट मीन्स 1, तो वी गेट दिस आंसर.
ठीक है, ये टोटल का आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह अगर आपसे ये कैसे, ये मैंने यहाँ पे ये दोबारा वही चीज़ एक्सप्लेन की है, 6/6 यहाँ पे टोटल लिखने हैं और यहाँ पे कितने फेसेस का पूछ रहे हैं वो आपने लिखना है। सही है। अब यहाँ पे देखो ये नेक्स्ट ये क्या है कि एनी 2 फेसेस का, अगर आपसे कोई कहता है कि इस फेस का फ्लक्स निकालो और इससे ऑपोजिट यहाँ पे जो है, इससे एग्जैक्ट बैक साइड पे ऑपोजिट जो है उसका फेस निकालो, उसका फ्लक्स निकालो, तो दैट वुड बी Q बाय एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे नीचे टोटल आ गया और कितने फेसेस का पूछा है 2 का, वो आपके पास आ जाएगा। तो इस केस में अगर आपको ऑप्शन दिया होगा 1/3 का लाजमी ऑप्शन दिया होगा MCQs में, तो आपके पास ये ऑप्शन आ जाएगा। और इधर 1/3 नहीं दिया हो तो 2/6 लाजमी दिया होगा। सही हो गया। अच्छा, तो ये आपके पास इससे रिलेटेड। अगर एक और एग्जांपल यहाँ पे ले लेते हैं, वी हैव अनदर क्यूब, और इस केस में आपके पास जो चार्ज मौजूद है वो आप याद रखो कि यहाँ पे मौजूद है, यहाँ पे इसके ये यहाँ पे चार्ज यहाँ पे मौजूद है, किसी एक एज के ऊपर मौजूद है। चार्ज अगर उसके एज पे मौजूद है तो आपसे वो कहता है कि इस केस में मुझे इस पूरे बॉक्स का फ्लक्स निकाल के बता दो, एंड द चार्ज इज़ प्रेजेंट एट द एज ऑफ दिस क्यूब। आपसे पूरे सरफेस का, पूरे क्यूब का फ्लक्स पूछता है। तो अब वो उसने एज का लफ्ज़ यूज़ किया, तो आपने यू नीड टू सी कि कितने एजेस हैं इस बॉक्स के, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 एक जगह पे मौजूद है। तो इस केस में आपके पास फ्लक्स क्या आ जाएगा, 1/8 ऑफ द चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, कि हमारी गिवन शेप को हमने 8 एजेस में, क्योंकि एज का लफ्ज़ उसने यूज़ किया तो 1/8 आंसर आ जाएगा। गॉट इट जी। सही है, आई होप सो ये चीज़ आपको समझ आ रही होगी। अच्छा, इसी तरह अगर हम एक और एग्जांपल लेते हैं, द लास्ट एग्जांपल, इसको हम देख लेते हैं। मेन वर्ड इन सारों में एक मेन वर्ड, की वर्ड आपको समझ आ रहा होगा, इनक्लोज्ड का लफ्ज़, कि चार्ज इनक्लोज्ड, हमने बस उसको देखना है, उसके लिहाज से हमारे पास आंसर आ जाएगा। फॉर एग्जांपल वी हैव अ स्फेयर, यहाँ पे एक स्फेयर आपको नज़र आ रहा है, एंड वी हैव अ चार्ज Q। ये मैंने चार्ज को शो किया। वैसे तो वो पॉइंट चार्ज होता है, एक डॉट से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन क्योंकि मैंने एक पॉइंट एक्सप्लेन करना था उसके लिहाज से मैंने एक ये पूरा ये चार्ज को शो कर रहा हूँ। तो आपसे ये कहता है कि इस स्फेयर का, इस सरफेस का, स्फेयर की सरफेस का फ्लक्स निकाल के बता दो। तो दैट वुड बी 1/2 Q बाय एप्सिलॉन नॉट। 1/2 Q बाय एप्सिलॉन नॉट ये आ जाएगा। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हो कि ये जो चार्ज है इसमें से आधा पोर्शन इसका सरफेस के अंदर है और आधा पोर्शन इसका सरफेस से बाहर है। तो जो पोर्शन इनक्लोज्ड है, सरफेस के अंदर है, वही सिर्फ फ्लक्स में अपना कंट्रीब्यूशन देगा। तो दैट वुड बी चार्ज को आधा करके डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। गॉट इट। तो मेन वर्ड इसमें आपने अगर फ्लक्स से रिलेटेड कोई भी MCQ आता है तो आपने उसमें चेक कर लेना है कि कितना चार्ज या कितना पोर्शन ऑफ द चार्ज उस सरफेस के अंदर है, तो उसके अकॉर्डिंगली आप उसका फ्लक्स का आंसर MCQs के ऑप्शन में से दे के इनसर्कल कर सकते हैं। आई होप सो ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा, और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में जितने भी इस तरह के कोई कॉन्सेप्चुअल पॉइंट होंगे जो MCQs में, एंट्री एग्ज़ाम्स में MCQs में पूछे जाते हैं, वो आपको इसी तरह एक सीरीज़ बना के दे दूंगा, और इंशाल्लाह आपको वो पॉइंट्स क्लियर होते जाएंगे। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफ़िज़।